Olympics. बढ़कर एक नाटकों से भरे थिएटर ओलंपिक में आपका स्वागत है। इस अंक में हम देखेंगे तुगलक, टेमिंग ऑफ द वाइल्ड, शायर शटर डाउन जैसे नाटक। आगाज करते हैं नाटक तुगलक से। तुगलक जिन्हें मजहब से परे इंसान की तलाश थी। हिंदू और मुसलमान उसकी दृष्टि में एक ही थे, लेकिन कई इतिहासकारों ने उन्हें सनकी भी माना। आइए देखते हैं नाटक तुगलक की कुछ झलक। थिएटर में विभिन्न भाषाओं, विभिन्न शैलियों का अद्भुत संगम है। हिंदी से इतर भाषाओं के नाटकों ने भी अपने प्रभाव से दर्शकों को सम्मोहित किया है। सुल्तानेर जय हो, सुल्तानेर जय हो। আমি আমার সাম্রাজ্যে হিন্দু ও মুসলমানের সম্প্রীতিকে সুদৃঢ় করতে চাই জোরালো। নতুন রাজধানী হবে এই মৈত্রীর প্রতীক। আমি তোমাদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমার সঙ্গে দৌলতাবাদে আসতে। আমন্ত্রণ, আদেশ নয়। যাদের আমার উপর আস্থা আছে তারা আমার সাথে আসতে পারে। তাদের সাহায্যে আমি এমন এক সাম্রাজ্য গড়ে তুলব যা হবে সারা বিশ্বের ঈর্ষার বস্তু। সুলতানের জয় হোক, সুলতানের জয় হোক। देवेश चट्टोपाध्याय के निर्देशन में कलकत्ता के लेक टाउन श्री भूमि संस्कृति द्वारा बंगाली भाषा में प्रस्तुत तुगलक, गिरीश कर्नाड इतिहास में सनकी बादशाह के नाम से मशहूर या बदनाम मोहम्मद बिन तुगलक की मूल सोच की विवेचना करते हैं, जो शायद अपने समय से 1000 साल पहले पैदा हो गया और धर्म और राजनीति को जिसने अलग अलग देखने की कोशिश की। এক্ষুনি আমি এই পৃথিবীর সবথেকে দাবার জটিল সমস্যাটার সমাধান করে ফেললাম। এমনকি আলাদলি বা সারাখি পর্যন্ত ভেবেছিলেন এই সমস্যার কোনো সমাধান হওয়া সম্ভব নয়, কিন্তু ব্যাপারটা এত সহজ। এরা কারা? ছুটিয়ান, এই কথা আবার জিজ্ঞাসা করছো? এ দুনিয়ায় আজ পর্যন্ত যত দাবা খেলোয়াড় জন্মেছেন এ দুজন তার মধ্যে সবার সেরা। তা দাবার কথা আমি কি করে জানবো বলো? তুমি বরং আইনুল বলকে লেখো না, ওর নিশ্চয়ই পছন্দ। মজার ব্যাপার, তুমি ওর কথা বললে। আমি এক্ষুনি ওর কথাই ভাবছিলাম। অবশ্য দাবার ব্যাপারে নয়, আমার ছোটবেলার বন্ধু, আমার পেয়ারের দোস্ত, দাবা খেলায় আমার সবচেয়ে বড় জুরি আইনুল মুলক এই মুহূর্তে দিল্লি আক্রমণ করতে এগিয়ে আসছেন। কি বলছো তুমি? যা শুনলে ঠিক তাই। 30,000 সৈন্য নিয়ে সে দিল্লির দিকে এগিয়ে আসছে। কিন্তু কেন মুহাম্মদ? জানি না। শেষ চিঠিতে আমি তাকে দাক্ষিণাত্যে সুবাহসালার হবার জন্য লিখেছিলাম। সেখানে একজন শক্ত লোকের দরকার। আমার মনে হয়েছিল কাজটা ওর পছন্দ হবে। নিশ্চয়ই আর কোনো কারণ আছে। সেখানে আপনি আপনার রাস্তা খুব ভালোভাবে সামলাতে পারেন, কিন্তু এই সমস্ত কথা আপনি আমায় বলছেন কেন? কারণ আমি শান্তি চাই, আমি এই যুদ্ধ মিটিয়ে নিতে চাই। কিন্তু কি করে মেটাবো? কেন যে সে এই যুদ্ধ চাইছে তা পর্যন্ত আমি জানি না। আমার দূতের সঙ্গে কথা বলতেও সে রাজি না। কিন্তু আপনার সঙ্গে সে কথা বলবে। তামাম হিন্দুস্তানের প্রতিটি মুসলমানের মতো সেও আপনাকে বিশ্বাস করে, শ্রদ্ধা করে। তাই আমি আপনাকে অনুরোধ করছি, আপনি কি আমার দূত হয়ে তার কাছে যাবেন? এই যুদ্ধ থেকে তাকে নিরস্ত করার চেষ্টা করবেন। শেখ সাহেব শুধু নিজের জন্য নয়, এই যুদ্ধ হলে মুসলমানের হাতে বহু মুসলমানের প্রাণ যাবে, সেই জন্যই আমি আপনাকে কথাটা বলছি। আপনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে কোনো আস্থা নেই আমার। আমার উদ্দেশ্য কি এসে যায়? শেখ সাহেব, আপনি অস্বীকার করতে পারেন না এই যুদ্ধ হলে মুসলমানের হাতে বহু মুসলমানের ভাইয়ের প্রাণ যাবে। আপনি আমাকে অকর্মণ্য বলেছেন, এখন আপনাকে একটা সুযোগ করে দেওয়া হচ্ছে। মহান শেখ ইমামউদ্দিনের কাছে সেটাই কি যথেষ্ট নয়? আপনি সেখান থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে পারেন না।
আমি জানি আমি পারি না। তাহলে আপনি রাজি? আপনি তো এছাড়া অন্য কোনো পথও খোলা রাখেননি। এর উপযুক্ত কৃতজ্ঞতা আমি কোনোদিন আপনাকে জানাতে পারবো না। हेपा और झूलूंगा। इस नाटक में 3 आत्माएं इंसानों के रूप में धरती पर जन्म लेती हैं, लेकिन उन्हें इंसानियत कहीं दिखाई नहीं देती, तो वो सोचते हैं वो यहाँ रहेंगे कैसे। इसमें कहानी है हरुमाई की। आइए देखते हैं असमी नाटक हेपा और झूलूंगा। 8वें ओलंपिक्स में विविध भाषाओं और संस्कृतियों की भागीदारी है। रंगधोली सांस्कृतिक केंद्र डिब्रूगढ़ की प्रस्तुति हेपा हो झूलूंगा की भाषा असमिया के साथ ही जिब्रिश भी है, लेकिन भाषा को छोड़िए, जरा अभिव्यक्ति पर आइए। स्वर्ग की आत्माएं, 3 आत्माएं पृथ्वी पर आने से मना कर देती हैं, क्योंकि उनकी बड़ी उलझन ये है कि वे पृथ्वी पर रहेंगी कैसे, जहां सफलता के पीछे अंधे होकर भाग रहे लोगों को ही ये नहीं पता कि वे क्यों जी रहे हैं। फिर शुरू होती है एक और समानांतर पूरक कथा। अंततः शांत, निश्चिंत, गहरी नींद तमाम धन दौलत पर भारी है। एक बेहद सारगर्भित गंभीर प्रश्न व्यंग्य की शक्ल में। अब लेते हैं आनंद राजस्थानी नृत्य बंजारा बंजारी का। हंस हंस बोल मिठी मिठी बोल
अतीत की यादों का। लेखक अपने घर को याद करता है, अपने स्कूल को, अपनी पढ़ाई को, पड़ोसियों, संबंधियों, रिश्तेदारों के एक एक पल को याद करता है मराठी नाटक मौन राग। माझा जन्म वराडातल्या पारवा या गावी झाला आणि मग अतिशय लहानपणी वयाच्या 4-5व्या वर्षीच मला तिथून उचलून दुसरीकडे नेण्यात आलं. पण आई वडील तिथेच राहत होते, त्यामुळे पारवा आहेच. रंगमंच का जैसे जैसे विकास हुआ है, इसके विषयों का दायरा भी बढ़ता गया है। औपचारिक नाटकों के साथ ही साथ विशिष्ट साहित्यिक कृतियों, काव्य कर्मों सहित तमाम लेखन विधाओं को मंच ने पूरा अवसर दिया है, क्योंकि मुख्य उद्देश्य है जीवंत अभिव्यक्ति। पारवा आणि तिथल्या घराचा सहवास मला फारसा कधी लाभला नाहीच. मला धड कळतही नव्हतं अशा वयात माझं रोपटं उपटून दूरस्थ भूमीत रुजवण्याचा प्रयत्न झाला. माझ्या इच्छा अनिच्छेचा कोणी विचारच केला नाही किंवा मला कोणी विचारलं नाही. ते रोपटं त्या जमिनीत वेडवाकडं जगत वाढत असलं तरी त्याची पानं आणि बाळफांद्या सूर्यफुलाप्रमाणे पारव्याच्या दिशेने वळलेल्या असतात. मौन राग ऐसा ही एक साहित्यिक कर्म है जो रंगमंच के लिए लिखा तो नहीं गया था, लेकिन जीवन उसे रंगमंच पर ही मिला। महेश एलकुंचवार की साहित्यिक जीवनी परक कृति में लेखक अतीत की गृह स्मृति या कहीं नॉस्टैल्जिया में उस घर को याद करता है जहां स्कूल के प्रारंभिक दिनों में उसने पढ़ाई की थी। अपने बचपन, पास पड़ोस, अपने लगाव अलगाव के एक एक पल की स्मृति अभिनेता सचिन खेडेकर और निर्देशक चंद्रकांत कुलकर्णी के प्रभावों से मंच पर साक्षात जीवंत होती है। सुट्टी पडली की 4 दिवसांकरता का होईना ते पारव्याचं घर आपल्याला उशीर घेईल, पाठीवरून हात फिरवेल. तो योगही फार वेळ येत नसे. आला तरी सुट्टी स्वप्नासारखी संपते. मग पुन्हा तडफडत घराची आठवण, पुन्हा स्वप्नरंजन, पुन्हा प्रतीक्षा. हम सब मेट्रो सिटी में कभी कभी कितने अकेले हो जाते हैं। बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन बातें करने के लिए इंसान नहीं मिलते। शायर शटरडाउन का यह पात्र भी काफी तन्हा है। वह किन किन से बातें करता है, आइए देखते हैं नाटक शायर शटरडाउन। आज का जीवन और परस्पर जुड़ाव की शून्यता, संबंधों की ऊष्मा का नितांत अभाव, व्यक्ति हो सकता है कि अपने वातावरण का विरोध न कर पा रहा हो क्योंकि इसकी क्षमता उसके पास नहीं है। किसी भी शहर में हमें सक्रिय रहना होता है और इसके लिए अपनी स्मृतियों और भीतरी शोर को शटर के भीतर रखना पड़ता है। हर किसी के भीतर एक कवि है, लेकिन क्या दुनिया को आपकी कविता चाहिए? नहीं। यहां लगातार क्रियारत रहने के लिए उसे दबाना पड़ता है और जीना सिर्फ सतह के ऊपर ऊपर। फ्लाइंग फेदर्स आर्ट एसोसिएशन की हिंदी एवं अंग्रेजी प्रस्तुति शायर शटरडाउन। रेड, येलो, ओके, येलो, I'll give you. Here is your. अरे काहे रे कुर्सी हरी? चट! नरमाई का एक कोना नहीं है जो टेक दे सके, so can't go. सिटी लाइफ का यही आराम है, एक चाहिए 2 ले लो. ओए!
चल। अबे 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 हिले नहीं तो काय को चल। हाँ इसीलिए बेचैन थी, झुंझला रही थी, उसने एडजस्ट नहीं किया यार। देखो देखकर एडजस्ट करना चाहिए। मेरे भीतर की एक लहर पछाड़ जाए पूरा शहर, मैं डरता हूं उससे, मरता हूं उसी में। दम भर फिर जी लेता हूं, उकता कर जीने से सो जाता हूं, सुलाकर लहर को कहीं शहर में गुम हो जाता हूं। अब किसे पता मैं कहां रहता हूं। ये मैं तुमसे कह रहा हूं, तुमसे, तुम जो देखती रही मुझे। हाँ एक बागी को तुम्हारी नजर ठहरी थी मुझ पर, उस शिकारत ने कुरेदा मुझे, मलाल हुआ, दुख हुआ, पर अच्छा लगा। उठती हुई टीस का वो पल नितांत अपना था, मैं जग गया। ये सब तो ओढ़ा ना सही, मगर जमाने का दिया हुआ है। पहले मैं दुखी नहीं चिंतित हुआ करता था मालूम। मैं सोचता रहता था कि क्या होगा मेरा, मैं पड़ा रहूंगा, दुनिया में पाँव जमा पाऊंगा, यही सब सोचता रहता था। किसी को उससे फर्क नहीं पड़ता। उनके फर्क ना पड़ने से इस दुख का आरंभ हुआ। मैं दुखी रहता, दुखी होता। मतलब ये एक ऐसा पहलू था जो नितांत अपना होता गया, और बाकी चलना फिरना उठना बैठना तो हर किसी की निगाह में था। अब अचानक मुझे लगा कि ये दुख साला छिप नहीं रहा है, चेहरे पर दिख रहा है, हाल के बाहर झांक रहा है। उसे दबाने के लिए मैंने खाना शुरू कर दिया, कपड़े खूब चढ़ाने लगा तय पड़ता है, और उसका कर्कश स्वर कहीं खंकार ना उठे इसलिए मैं तेज तेज और जोर जोर से बोलने लगा, और ऐसे लोगों के बीच में रहने लगा जो ऊंची आवाज में बोलते हैं, ऊंची आवाज में हंसते हैं, क्योंकि वे मुझे अपने से लगे, अनजान नहीं, क्योंकि वे भी किसी दुख को छिपाए चल रहे थे, मेरी तरह पैसा बना रहे थे। बाबू मुशाय, बिना देखे बता सकता हूँ हाथ में नोट 100 का है या 1000 का। समुद्र में तूफानी लहरें हैं, किनारों पर प्रकृति उल्लास में है। इसमें कहानी है सारस के एक जोड़े की और शिकारी के शिकार होने की। आइए देखते हैं नाटक बीहड़ की पुकार, टेमिंग ऑफ द वाइल्ड से।
आगे और भी बहुत कुछ है हमारे अगले अंकों में। देखते रहिए थिएटर ओलंपिक 2018। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।